السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ 11ویں بین الاقوامی یوگا ڈے پر وشاکھاپٹنم میں مرکزی تقریب۔ دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ برقی ملازمین و وظیفہ یابوں کو 2% اضافی گرانی بھتہ۔ جنوری 2025 سے طلاق، نائب وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ شمس آباد ایئرپورٹ سے BRS رکن اسمبلی کوشک ریڈی کی گرفتاری۔ ورنگل صوبیداری میں مقدمات درج۔ حکومت نے کی انتقامی کارروائی، KTR کا الزام۔ اور شہر میں آتش زدگی کے علیحدہ واقعات۔ آصف نگر میں اسکریپ اور پہاڑی شریف میں فرنیچر کے گوداموں میں لگی آگ۔ کوئی جانی نقصان نہیں، بھاری مالی نقصان کا خدشہ۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ دنیا بھر میں ہفتہ 21 جون کو 11واں بین الاقوامی یوگا ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر ہندوستان سمیت دنیا کے 191 ممالک میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس سال کا خاص تھیم یوگ سنگم تھا، جس کے تحت صبح 6:30 بجے سے 7:45 تک ملک بھر کے 1 لاکھ سے زائد مقامات پر مشترکہ یوگا سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس سال یوم یوگا کے مرکزی پروگرام میں شرکت کے لیے آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں موجود تھے، جہاں انہوں نے تقریب کی قیادت کی۔
عالمی یوگا ڈے کے موقع پر آندھرا پردیش کی وشاکھاپٹنم میں منعقد تقریب سے وزیر اعظم مودی نے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یوگا کی عالمی مقبولیت پر روشنی ڈالی اور اس کی انسانیت کے لیے اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ جب 2014 میں ہندوستان نے اقوام متحدہ میں یوم یوگا کے لیے قرارداد پیش کی تھی تو محض چند دنوں میں 175 ممالک نے اس کی حمایت کی، جو ان کے مطابق دنیا کے لیے ایک غیر معمولی اتفاق رائے کی علامت تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا کے سائنسی اور تحقیقاتی فوائد کے سبب اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوگا کو سائنسی تعلیم کے نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دہلی نے یوگا پر ریسرچ کر کے اس کے طبی فائدوں سے مریضوں کو مستفید کرنا شروع کیا ہے۔ آندھرا پردیش میں یوگا کی مقبولیت کے لیے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کے فرزند نارا لوکیش، جو ریاستی وزیر بھی ہیں، نے اس کی جم کر تعریف کی۔ نارا لوکیش کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو اس نوجوان کی جدت سے اپنے آپ کو مستفید کرنا چاہیے۔ چندرا بابو نائیڈو اور دوسروں نے بھی اس مرکزی یوگا تقریب سے خطاب کیا۔ آندھرا پردیش حکومت نے عظیم الشان پیمانے پر یوگا تقریب منعقد کی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی، جبکہ ہزاروں اسکولی طلباء کو بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ تاہم آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے اس یوگا ڈے کو بھی اپنی شہرت اور سیاسی فائدے کا حربہ بنا لیا۔ آندھرا پردیش حکومت پر الزام ہے کہ اس نے یوگا ڈے تقریب میں مدعو قبائلی طلباء کو بے یار و مددگار اور بھوکا چھوڑ دیا تھا۔ یہ طلباء رات بھر یتیموں کی طرح فرش پر سونے پر مجبور تھے۔ وشاکھاپٹنم سے وائرل ویڈیو نے آندھرا پردیش حکومت کی تیاریوں پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ یوگا ڈے صحت اور تندرستی کا جشن ہونا چاہیے تھا، لیکن نائیڈو حکومت نے اسے ہائی جیک کر لیا اور مبینہ طور پر 100 کروڑ روپے کے خرچ سے منعقدہ اس تقریب کو سیاسی پی آر اسٹنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ یوگا ڈے کی اس تقریب کو گنیس ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانے کے لیے آندھرا پردیش حکومت نے ہزاروں قبائلی طلباء کو ریاست کے دور دراز علاقوں سے بسوں میں وشاکھاپٹنم منتقل کیا، لیکن نائیڈو حکومت پر ان طلباء کے قیام و تام کے لیے لاپرواہی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے عالمی یوگا ڈے تقریب کے لیے خرچ کردہ رقم پر جگن موہن ریڈی کی تنقیدوں کو مسترد کر دیا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو کا کہنا تھا کہ آپ سیب کا تقابل پیاز سے نہیں کر سکتے، آپ کو کاموں کے تقابل کا احساس ہونا چاہیے۔ چندرا بابو نائیڈو کا کہنا تھا کہ یوگا ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ یوگا تقریب پر رقم خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ عوامی رقم کا ضیاع ہے۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے بڑے پیمانے پر یوگا تقریب کے انعقاد کے لیے 100 کروڑ روپے کے اخراجات کو عوامی رقم کا بے جا خرچ قرار دیا تھا۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں یوگا ڈے تقریب کے انعقاد میں آندھرا پردیش حکومت کے ناقص انتظامات کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ پروگرام میں شریک لوگ وہاں تقسیم کیے جا رہے کھانے کے پیکٹ چھینتے دیکھے گئے، جبکہ کچھ لوگ یوگا کے لیے بچھائی جانے والی چٹائیاں بھی چھینتے ہوئے نظر آئے۔ بی آر ایس کے حضور آباد رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی کو حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کوشک ریڈی کو ورنگل کے صوبیداری پولیس نے کان کے مالک کو دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ گرفتاری کے بعد پولیس نے کوشک ریڈی کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے ورنگل منتقل کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کوشک ریڈی کے خلاف بی این ایس سیکشن 308 2 اور 4 اور 352 کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں حملہ اور اقدام قتل کا الزام بھی شامل ہے۔ حکومت نے برقی کے ملازمین و وظیفہ یابوں کے گرانی بھتے میں اضافے کا اعلان کیا ہے، جس سے ریاست میں 71,417 برقی ملازمین و وظیفہ یاب مستفید ہوں گے۔ اس اضافی گرانی بھتے کا اطلاق جنوری 2025 سے ہوگا۔
नए वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, जो महकमे बरक़ी का कलमदान भी रखते हैं, ने गिरानी भत्ते में इजाफे से मुताल्लिक़ प्रजा भवन में मुनक़्क़दा एक तक़रीब से खिताब कर रहे थे। ये इजाफा 2% होगा। 14.074 से बढ़ाकर अब इसे 16.018 कर दिया गया। इससे रियासती खजाने पर हर माह 11.193 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि बरक़ी के मुलाजिमीन को हुकूमत अपना एक ख़ानदान समझती है। मुस्तक़बिल में बरक़ी की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने ग्रीन एनर्जी के बशमूल दीगर वसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2023 में बरक़ी की तलब 15,000 मेगावाट थी। मार्च 2025 तक तलब 17,162 मेगावाट हो गई। हुकूमत ने पैदावार में 2,000 मेगावाट का इजाफा किया। बरक़ी सनती और दीगर मकासद के लिए बेहद ज़रूरी है। 2030 तक ये तलब 26,299 मेगावाट हो जाएगी। 2034-35 तक 33,773 मेगावाट बरक़ी की तलब को पूरा करने इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरक़ी के मुलाजिमीन बढ़ती हुई तलब को अपनी मेहनत लगन से पूरा कर दिखाएं। हुकूमत उनके साथ है। ट्रांसको के CMD कृष्णा भास्कर, मुलाजिमीन की मुख्तलिफ यूनिटों और वजीफायाबों की एसोसिएशन के नुमाइंदे इस तकरीब में शरीक थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने अपनी पार्टी के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी जो अवाम से किए गए वादों को पूरा करने से कासिर हैं, वो तवज्जो हटाने BRS के कायदीन को निशाना बना रहे हैं। कौशिक रेड्डी को शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। KTR ने कहा कि BRS पार्टी हुकूमत की इन हरकतों से डरने वाली नहीं है, बल्कि इसका भरपूर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में अवामी मसाइल किस तरह हल किए गए, इससे अवाम वाकिफ हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला की ईमा पर BRS कायदीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। BRS के कायद व कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मधुसूदन शाही ने एक अलहदा बयान में कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि अपोजिशन की आवाज को कुचलने झूठे इल्जामात के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। मरकजी वजीर बंडी संजय ने फोन टैपिंग मामले की CBI जांच की मांग की है। बंडी संजय का कहना था कि पुलिस को फोन टैपिंग केस में साबिक वजीर आला KCR और उनके फर्जंद KTR को नोटिस जारी करते हुए जांच शुरू करना चाहिए था। मरकजी वजीर बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से फोन टैपिंग केस की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए केस को CBI के हवाले करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि अगर केस CBI को मुंतकिल किया जाएगा तो असल हकायक सामने आएंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली B वेंकट ने BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी को कानून के ऐन मुताबिक करार दिया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि उनकी गिरफ्तारी पर BRS कायदीन वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि ये गिरफ्तारी उनकी मुजरिमाना सरगर्मियों पर हुई है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, अगर वो समझते हैं कि बेकसूर हैं तो उसका फैसला अदालत करेगी। रुकन असम्बली महेश्वरम सबीता इंदिरा रेड्डी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मकीनों के मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने क़ुबा कॉलोनी और शाहीन नगर के मकानों में FTC की मार्किंग से मकीनों के मसाइल की समाअत की। उन्होंने मकीनों को तयक़ुन दिया कि वो मकीनों के पास LRS रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात के अलावा टैक्स और लाइट के बिल्स हैं जो वो गुज़िश्ता 15 साल से अदा कर रहे हैं। उन्होंने मकीनों को तयक़ुन दिया कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। इस मौके पर जलपली बलदिया के कमिश्नर वेंकटराम, चेयरमैन जलपली बलदिया अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा मजलिस और BRS पार्टी के कायदीन मौजूद थे। కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చిందని చెప్పి ఎవరికి చెప్పకుండా లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా నేనున్నా చెప్పకుండా ఇక్కడ ఎక్స్ చైర్మన్ గారు ఎక్స్ కార్పొరేటర్లు వీళ్ళెవ్వరికి చెప్పకుండా ఆఫీసర్లు వచ్చి ఇమీడియట్ మార్కింగ్ చేసిపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోతే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? వాళ్ళు పైసా ఒక్క తీసుకొని ఈ రోజు కష్టపడి ఇండ్లు కట్టుకున్నారు, అప్పు తెచ్చుకున్నారు, భూములు అమ్ముకున్నారు, ఊళ్ళల్లో అమ్ముకొని ఈ రోజు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారు. మరి ఈ రోజు మీరు వచ్చి సడన్ గా మార్కింగ్ చేసిపోతే మీకు అధికారం ఉందని ఇరిగేషన్ MRO పోలీసుని తీసుకొని వచ్చి మార్కింగ్ చేసిపోతే రేపొద్దున వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరైనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కానీ ఇంకేదన్నా చనిపోతే ఎవరు బాధ్యులు? వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎవరు మేలు చేస్తారు? దయచేసి ఇట్లాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు చేయకండి.
మీరు రావాలనుకుంటే, అఫీషియల్ గా మీరు రావాలనుకుంటే, ప్రజల పక్షాన సపోర్ట్ కావాలనుకుంటే తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్న లీడర్లను సపోర్ట్ చేస్తాం. అక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది కావద్దు, టెక్నికల్ గా మీకు ప్రాబ్లం రావద్దు. కానీ ఈరోజు ఒక సైడ్ హైడ్రా అని, ఒక సైడ్ రోడ్ల పైన స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉన్నారని వాళ్ళను గుంజు పడేయడం. హైదరాబాద్ లో ఎట్లయింది పరిస్థితి అంటే ఎక్కడ చూసినా గందరగోళం, ఎక్కడ చూసినా గందరగోళమైన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. హైడ్రా అనేది ఇష్టం వచ్చినట్టు లాగి పడేస్తా ఉన్నారు. పేద వాళ్ళని ఇళ్లకి వెళ్ళి గుంజు గుంజు పడేస్తా ఉన్నారు. స్ట్రీట్ మీద అంటే రోడ్ల మీద అమ్ముకుంటున్న వాళ్ళకి రోజు ఏదో కొంత అమ్ముకొని వాళ్ళ బ్రతుకు తెరువు ఉంటుందంటే వాళ్ళని కూడా రోడ్లకు అడ్డం వస్తుందని స్ట్రీట్ వెండర్స్ కూడా లాగి పడేస్తున్న సందర్భం ఈరోజు హైదరాబాద్ లో చూస్తా ఉన్నాం. हल्का असम्बली मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में वीडीसीसी रोड का तामीरी काम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में नवाब शाह आलम कॉलेज आजमपुरा पुल पर तामीरी काम अमल में लाया जा रहा है। एमएलए फंड्स के तहत 48 लाख रुपए की लागत से जारी इन तामीरी कामों का आजमपुरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार ने जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर के हमराह जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी अफराद और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कर्नन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के सिलसिले में बात की। इस मौके पर उन्होंने आरवी कर्नर को मेंटेनेंस के कामों के सिलसिले में खास तौर से नालों की सफाई के लिए मकतूब भी हवाले किया। जाफर हुसैन मिराज हल्का असम्बली याकूतपुरा के लिए इंचार्ज ई का तकर्रुर करने के लिए कहा, जिसके लिए कमिश्नर जीएचएमसी राजी हो गए। जाफर हुसैन मिराज चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस एम कोटेश्वर और दूसरे अहदेदारों के हमरा नालों के कामों का भी जायजा लिया ताकि छोटे नालों को बड़े नालों में मोड़ दिया जा सके। इस सिलसिले में एक तफसीली जायजा अनकरीब लिया जाएगा। रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में अपने डिवीजन का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने गौस नगर और वासवी नगर में सीसी रोड और सीवरेज लाइन्स के मुकम्मल शुदा कामों का मुआयना किया, जिस पर 55 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। चूंकि गौस नगर के नशबी इलाकों में रहने वालों को वहां बारिश का पानी जमा होने की शिकायत थी, जिसकी एक्सुई हो गई। मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि ज़र-ए-इल्तिवा कामों को मौसम बरसात से पहले पूरा करने के लिए सदर मजलिस ने हिदायत दी थी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए, जिससे 45 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स की जुमला मालियत 26,25,000 रुपए बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल महमूद कादरी भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हलके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे जात बरखी, बलदी, आबरसानी के अहदेदारों के हमराह नदीम कॉलोनी, झांसी नगर कॉलोनी, सात गुंबद, सालार ब्रिज और हकीम पेट और इसके अतराफ के इलाकों का अहाता किया और बॉक्स ड्रेन, नाले, वीडीसी रोड, स्ट्रीट लाइट्स और पार्क्स के तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन बलदिया हारून फरहान, वजीहुज़्ज़मा के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर और मोतमदीन मौजूद थे। न्यू किशन नगर आसिफ नगर झिर्रा के इलाके में एक इमारत की चौथी मंजिल पर आग लग गई। इसकी इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन मुकाम वाक़या पहुंच गए। मुतासरा इमारत की चौथी मंजिल में आग की जद में आने से पहले 13 अफराद को बचा लिया गया। शहर के 7 फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझाई। यह वाक़या हफ्ते की अलसुबह पेश आया। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद अजीज़ुर रहमान और मजलिस के इब्तदाई सदर और मोतमदीन और सरगर्म कारकुन भी पहुंच गए। पहाड़ी शरीफ के इलाके वादी मुस्तफ़ा में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से इलाके में धुएं के बादल फैल गए। मुहीब आग के शोले देखे गए। मुकामी अफराद ने
आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचा और जब आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में मुकामी अफराद जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की मामूली तौर पर झुलस गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। पहाड़ी शरीफ पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में योगा डे के मौके पर अफरा तफरी के दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। यह वाकया स्टेडियम की गेट नंबर 2 पर बेहंगम हुजूम के बाइस पेश आया। भगदड़ का यह वाकया उस वक्त पेश आया जब प्रोग्राम में शरीक मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा नाश्ते के लिए पंडाल पहुंच रहे थे। हुजूम के बाइस भगदड़ मच गई और इस धक्कमपेल और हंगामाराई में एक तालिबा गिरकर बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू किया और इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। भगदड़ के बाद गच्चीबाउली स्टेडियम के अहाते में नाश्ते की प्लेटें बिखरी पड़ी देखी गईं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक बार और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 11वें बैनुल-अक़वामी योगा डे पर विशाखापट्टनम में मरकजी तकरीब। दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। बरकी मुलाजमीन व वजीफा याबों को 2% इजाफी गिरानी भत्ता। जनवरी 2025 से तलाक, नायब वजीर आला का ऐलान। शमशाबाद एयरपोर्ट से BRS रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी। वरंगल सूबेदारी में मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने की इंतकामी कार्रवाई।
KTR کا الزام. اور شہر میں آتش زدگی کے علیحدہ واقعات. آصف نگر میں اسکریپ اور پہاڑی شریف میں فرنیچر کے گوداموں میں لگی آگ. کوئی جانی نقصان نہیں، بھاری مالی نقصان کا خدشہ. اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہی اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.